इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर जो है वो है नरेंद्र मोदी जी। Do you think the next generation, Gen Zs, millennials, want to experience spirituality differently? आई थिंक दे वांट टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी मच मोर देन आई वाज व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। नीम करोली के नाम से Okay. काफ़ी फेमस है नॉर्थ Yeah, इंडिया yeah. में, राइट? आप वहाँ जाइए, आप कभी भी जाएंगे ना, आप देखेंगे एवरेज एज ना वहाँ पर 20 से 25 के बीच में है। क्या बात कर रहे हैं? Now Gen Zs are consuming least alcohol ever. Right? It's first time in the world. The world is seeing this. Hindus are not scared to speak we are Hindus. Indian spirituality market, right? It is projected to reach $100 billion by 2030. Yeah, so I don't believe in these numbers that keep getting floated around. 40 billion, 100 billion, कोई कुछ भी बोल रहा है यार. Welcome to our podcast Level Up with Manu Jain, founder of Vama. Manu shares how he's bringing spirituality online for a new generation altogether, scaling trust in a $100 billion market, and what's driving India's spirituality tech boom. We discuss Vama's business model and user engagement strategies. Manu also reveals lessons from building a consumer tech brand, the challenges of raising venture capital funds in this space, and his advice for founders aiming to create the next big thing in digital spirituality. Let's dive in. Welcome to Level Up, Manu. Thanks for coming. And I think, we've been in touch for a long time and, trying to get a proper date. और finally ये हो सका. Thank you. Thanks a lot, thank you. Manu bhai. First question to you is, spirituality was mostly offline, right? It has been local, deeply personal. What made you believe that it can go digital and it can be scaled digital, prima facie also from the angle of trust of people? यार तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थैंक यू फॉर हैविंग मी. बट सो वामा एंड स्पिरिचुअलिटी डिजिटल बहुत लोग बोलते हैं, राइट देवांश, कि वर्चुअल है क्या है. बट लेट्स गो बैक, लेट्स टेक अ स्टेप बैक. भूल जाओ वामा, भूल जाओ सारे प्लेटफॉर्म. ऐसा घर में तो हमेशा हुआ होगा ना कि कोई किसी मंदिर जा रहा है और उसने बोला यार मैं वैष्णो देवी मंदिर जा रहा हूँ. जैसे हमारे घर में बहुत होता था कि यार मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, हम बोलते थे अच्छा हमारे नाम से भाई 10 रुपये 1 रुपये चढ़ा कर आ जाना. अच्छा आप ऋषिकेश जा रहे हो, आप गंगा का पानी ले आना, राइट? तो ये क्या है? ये एक प्रॉक्सी है ना, कि मेरे घर में एक प्रॉक्सी है जो जाके मेरे बिहाफ पे वहाँ पे डोनेट कर रहा है या मेरे लिए कोई सामान चढ़ा वाले क्या, हाँ. राइट. दिस इज़ लिटरली व्हाट प्लेटफॉर्म्स लाइक वामा, और दिस इज़ व्हाट वामा स्टार्टेड फॉर. कि अगर मेरी फैमिली में आज कोई नहीं जा रहा तो क्या मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा? Can I make that process easier for customers, right? Everything else is a subsection of it, right? But that is the gist of it. Okay, got it. Indian spirituality market, right? It is projected to reach $100 billion by 2030. What are the biggest growth drivers that are, that you see for this space? Yeah, so I don't believe in these numbers that keep getting floated around. 40 billion, 100 billion, कोई कुछ भी बोल रहा है यार. नहीं पता, right? But when you are offline at a temple, you see the enormous amount of scale, right? I think spiritual tourism is definitely one of the biggest levers, drivers that I see, right? But देवांश, मैं यही बोलता हूँ कि आज जैसे आप मेरे घर में देख लो, right? I have parents, I have kids. तो अगर एक कोई ऐसी ऐप है क्या जिसमें मैं मंदिर नहीं जा सकता, आज मंडे है तो क्या मैं शिव जी को वर्चुअली दूध चढ़ा सकता हूँ? अच्छा आज थर्सडे है, आज मेरे माँ बाप को शायद अगर पेरेंट्स को वैष्णो देवी जाना है तो क्या मैं उनकी टिकट बुक कर सकता हूँ, उनके वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड बुक कर सकता हूँ, क्या मैं उनका अंदर की टिकट बुक कर सकता हूँ? आई हैव टू गो थ्रू 5 डिफरेंट ऐप्स और 6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट? देयर इज़ नॉट वन थिंग, नो. I don't think the user today or the customer today or the devotee today wants to do this. This is the opportunity. It's been an hassle for a long time, I think, for devotees, especially हमारे parents, senior citizens हो जाते हैं, etc., etc. And then you have to go through so many channels. Forget channels, you have to go through multiple different कि आप अपनी ट्रेन की टिकट एक आदमी से कराओगे, आप मंदिर के दर्शन दूसरे से कराओगे, आप हेलीकॉप्टर राइड तीसरे से कराओगे, वहाँ पर पहुँचोगे, आपका घोड़े पे जाना है तो वो अलग होगा, पंडित जी को आप अलग पैसे दोगे, प्रसाद छठी दुकान से खरीदोगे. तो आप 6-7 अलग अलग टच पॉइंट्स पे आ रहे हो जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. क्या एक प्लेटफॉर्म ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहाँ सब कुछ मिले यार? दैट इज़ द सिंपल थिंग, राइट? दिस इज़ वाई वामा इज़ बॉर्न, राइट? आज हम एक डिजिटल नेटिव ओनली ब्रांड हैं, बट हम होपफुली 5 साल में ज़िंदा रहेंगे और हम ये नहीं होंगे, राइट? this is what Vama's vision, dream for me is. It is one app जहाँ पर
इफ़ आई एम द डिसीजन मेकर ऑफ माई फैमिली कि मेरे बच्चों को आज मान लीजिए घर में कोई त्यौहार है, उनको बताना है कि इस त्यौहार का महत्व क्या है, यू नो, तो दे विल गेट टू नो इट। और मेरे पेरेंट्स को फिजिकली टेम्पल जाना है तो उनकी भी मैं बुकिंग करा, सो वन प्लेटफॉर्म पे आई गेट एवरीथिंग। सो फिजिकल बुकिंग ऑल्सो एंड डिजिटल, आपको आरती करनी है, पूजा करनी है, कहीं पे भी कोई भी गॉड की आप कर सकते हो इवन डिजिटली। This is the dream that I have for Vama. This is the vision that I have for Vama, right? I think super apps in India at a category level exist. If Zomato is for food, right, like it's a category super app, right, then maybe Vama can be for spirituality for Hindus. Got it. Do you think the next generation, Gen Zs, millennials, want to experience spirituality differently? I think they want to experience spirituality much more than I was when I was 20 years old. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज ऑफ माई जॉब एंड मे बी बिकॉज ऑफ नाउ माई स्पिरिचुअल कॉलिंग, मैं मंदिरों में बहुत जाता हूँ, राइट? तो आप जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक मंदिर है उत्तराखंड में नीम करोली के नाम से, काफ़ी फेमस है नॉर्थ इंडिया में, राइट? आप वहाँ जाइए, आप कभी भी जाएंगे ना, आप देखेंगे एवरेज एज ना वहाँ पर 20 से 25 के बीच में है। क्या बात कर रहे हो? तो ये ना एक मिसनॉमर है कि जो लोग हम ये भारत 1, भारत 2, भारत 3 बोलते हैं ना, तो ये भारत 1 के लोगों को लगता है कि यार स्पिरिचुअलिटी तो एक 40 ईयर ओल्ड के लिए, 50 ईयर ओल्ड के लिए बना रहा हूँ ना। आप जाके देखो मंदिर कौन आ रहा है। तो आज हमारा यूज़र भी वही है देवांश, हमारा यूज़र एवरेज 24 ईयर ओल्ड मेल इन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया है, यू नो, क्योंकि यही वो यूथ है। आप राम मंदिर जाओ यार, आप, मैं आपको बता रहा हूँ 60% आज भी वहाँ पर यूथ है। ये हमारे दिमाग में हमने बोला कि यार यूथ नहीं है, और मुझे लगता है ये एक मैक्रो फिनोमेना हो रहा है, राइट? इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर जो है वो है नरेंद्र मोदी जी। अगर वो मंदिर जाते हैं तो पूरी दुनिया उस मंदिर जाना चाहती है, यू नो। यू आर सीइंग द हीरोज़। अब ये जब हम बचपन में थे, राइट, लाइक आई एम 44 नाउ, जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे नहीं याद कि मेरे जो हीरोज़ थे ना वो कब जा रहे थे मंदिर और प्राउडली बोल रहे थे यार। अब आप देखो यार, आपके सारे हीरोज़ जा रहे हैं ना, बी एट विराट, बी एट अनुष्का, बी एट मोदी जी, बी एट And they are publicly saying, they are showing, embracing it. embracing the आप culture. राम मंदिर की ओपनिंग पे देखो कौन नहीं गया। जब आपके हीरोज़ वहाँ जा रहे हैं ना तो आपको भी जाना है। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन दैट मैक्रो लेवल इन इंडिया, यू नो, विच इज़ वेरी गुड। दैट एक टाइम था हम एग्जाम में जाते थे ना, टीका छुपाते थे। आज लोग, आप जाके देखो, टीका इट्स बिकम सो गुड दैट पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डूइंग इट। ये क्यों ऐसा मूवमेंट आया, मतलब मुझे how has लगता this है movement ये, come? I think the macro is obviously I will give the benefit to the RSS or the political climate of the country, right? Hindus are not scared to speak we are Hindu यार। आज हम खुल के बोलते हैं ना यार, हम मंदिर जाते हैं, हम दिखाना चाहते हैं। ये शायद पहले से था बट नीचे था, कहीं पर कुछ सबलाइमली चेंज हुआ और पिछले 15 साल में चेंज हुआ। हाँ, 10, 12, 15 साल में तो अब आप देखो कि प्राउडली लोग जा रहे हैं और शो भी कर रहे हैं कि अच्छा मैं जाके आया हूँ, मतलब ये आरती के लिए गया आप था। आरती के लिए गए, आप सिंपल चीज़ें देखेंगे। आप कभी भी उबर ओला लेंगे ना, आप देखेंगे उनके डैशबोर्ड पे क्या पड़ा। मोस्ट डैशबोर्ड्स पे शिव जी की फोटो है, ओम है, यू नो। तो दीज थिंग्स वर नॉट देयर यार 15 साल पहले। इतना नहीं था, यहाँ हमें दिखता नहीं था, अगर था तो। या हनुमान जी का गदा है या गणपति भगवान है। और ये मैं एक्चुअली, सिंस यू ब्रिंग दिस अप, आई एम अ जैन, राइट? आई एम अ जैन टू। अरे हाँ, आप मनु जैन। तो पालीताना जब जाते हैं, मतलब यू नो, मैं लास्ट टाइम अभी जब गया था, एंड there were, again, as you rightly said, 20 to 25 year old. I cannot say 20 to 25, but there are so many youngsters that go there for you know, the darshan, और वो चढ़ के जाते हैं, पूरी यात्रा कंप्लीट करते हैं। और जो एक 99 बोल के हमारे में है, यू नो, जो 99 टाइम्स आपको ऊपर नीचे करना है, वो प्रॉपर चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ प्रॉब्ली 2.5 months, 2 months और whatever, तो वो जो आपको करना है, उसमें मैक्सिमम लोग आर 18, 19, 20 अप टू 25 ईयर ओल्ड जो लोग ये कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज देयर कि जो जेनजीज है, मिलेनियल्स है, ये लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं। एंड यू नो, मे बी देयर रीजन ऑफ डूइंग इट इज डिफरेंट, मे बी देयर दैट कुड बी, ऑफ कोर्स दे आर कमिंग, दे आर आस्किंग द रेलेवेंट क्वेश्चंस। तो यू नो, ये जो थॉट है कि यार ये 20 साल के लोग तो सिर्फ पार्टी कर रहे हैं, यू नो, द ट्रेंड्स आर वेरी डिफरेंट। कि द नाउ जेनजीज आर कंज्यूमिंग लीस्ट अल्कोहल एवर, right? It's first time in the world,
right? The world is seeing this, right? They are becoming more conscious. If they are becoming more conscious physically, they are becoming more conscious spiritually. Look at the content that is on Instagram, right? Maximum is spiritual content because people are, वो content क्यों बन रहा है? अगर लोग consume नहीं करेंगे तो क्यों बनेगा, right? Instagram is for Gen Zs, right? So one of the biggest content is this. Yeah, spirituality is one of the biggest content. All right. So coming to Vama, right? पहले तो मुझे ये जानना है कि what is the logic or reason behind the name Vama? अच्छा लगता है सुनने में वामा. वो तो है. तो it's very simple यार. The company's registered name is called Select Astro. We started as an astrology company. और अगर आप एक इंडियन जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, और मैं जेन्युइन बहुत केयरफुली बोलता हूँ क्योंकि हमारे देश में आज बहुत कुछ भी चल रहा है, राइट? तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है 50% ऑफ द टाइम यू माइट नीड अ रेमेडी, राइट? इफ़ यू नीड अ रेमेडी, व्हाट इज़ अ रेमेडी दैट अ वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजर विल गिव यू इज़ आइदर आप जेमस्टोन पहनिए या आप एक मंदिर में जाकर पूजा कराइए. तो हमें 2021 में ये लगा कि एक वैल्यू ऐड की तरह हम एक वर्चुअल पूजा करा सकते हैं. और तब कोविड था, अगर आपको याद हो. तो हम महाकाल पे थे उज्जैन में. आज मेरे को फाउंडर आज भी वहाँ है स्ट्रेंजली. तो हमें लगा क्या हम वर्चुअल पूजाज एनेबल करा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे. एंड कोविड में बहुत वर्चुअल पूजाज बिकेम वेरी पिकअप हो गया. इट बिकेम अ नॉर्म, राइट? तो वामा बिकेम एस्ट्रोलॉजी और पूजा. तो वामा का फुल फॉर्म वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी वर्चुअल मंदिर ऐप. Hi everyone, a quick shout out to our amazing sponsors and partners who make this show Level Up possible. First off, No Filtered Juice, which is your daily dose of pure, unfiltered goodness with 100% real fruit juice, zero added sugar, no preservatives, and no artificial concentrates. Every sip is packed with authentic flavor and nutrients. Plus, it's served in eco-friendly glass bottles. Good for you and good for the planet, starting at just ₹159. No Filter is the healthiest way to fuel your day. Click on this link below to purchase your bottle now. Our second sponsor is Titus Footwear. It is a brand built on legacy, quality, and innovation. From sturdy work boots to stylish sandals and cozy slippers, Titus has something for everyone in the family. Especially if you are a child going to school, this is a brand known for its footwear for school children. Affordable, durable, and always in style. Titus lets you walk with confidence starting at just ₹299. Click on the link below to purchase your shoes now. I would like to thank our growth partner Growth OS and our venue partner Let's Work. It's VAMA. VAMA. Got it. और सुनने में भी बहुत अच्छा लगा. Yeah. But I would like to give thanks to Aarti, the design studio. She came up with this. We worked with her. And she was instrumental in getting us this name, right? For a founder, नाम ही सब कुछ है ना. नाम ही है ना. तो हमें लगा नाम बहुत अच्छा है. Short है, sweet है, immediately मुंह पे आ जाता है. I think that also makes sense. What is the business model of Vama? How do users interact with astrologers? How does the digital puja happen? Can you give us a brief on that? तो Vama is a marketplace, right? जहाँ पर ये two-sided marketplace है. एक साइड पे यूज़र है, एक साइड पे सप्लाई है. तो सप्लाई मैं बोलता हूँ, अगर आप किसी भी टू साइडेड मार्केट प्लेस को देखेंगे, चाहे वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट हो, एक तरफ यूज़र है, एक तरफ सप्लायर्स हैं. तो हमारे सप्लायर्स मंदिर हैं, हमारे सप्लायर्स एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे सप्लायर्स स्पिरिचुअल गुरुज हैं, हमारे सप्लायर्स ऑल्सो जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग भी हैं, राइट? हम एक बीच में मार्केट प्लेस हैं जो टेक्नोलॉजी इनेबल है. तो आप आके कोई भी सर्विस लेते हैं किसी भी मंदिर से, पुजारी से, तो हम एक रेवेन्यू शेयर उसका शेयर लेते हैं. प्लेटफॉर्म फीस है, विच इज़ व्हाट वी चार्ज, राइट? दैट इज़ द बिजनेस मॉडल दैट वी आर इन टुडे. ओके. और यूजर्स इंटरैक्ट कैसे करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स पे, आपके प्लेटफॉर्म पे या पुजारी से? सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे नेटिव होता है. देवांश, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर एक बार आए हैं तो बाहर नहीं जाएंगे. द सर्विस डिलीवरी हैपन्स ऑन द प्लेटफॉर्म. तो इसका मतलब है कि आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी जाननी है तो आप ऐप पर आएंगे, अपना हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, आप एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, आप अपनी पूजा बुक कर सकते हैं. और आपने बोला कि मेरे को इस शनिवार को शनि की पूजा करानी है फॉर एग्जांपल, और मुझे सिर्फ एक उज्जैन में एक शनि मंदिर है वहीं करानी है जो मेरे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है. तो उस टाइम पर आपकी एक पूजा होगी. आप जैसे एडटेक में स्लॉट्स होते हैं,
तो वैसे ही आपको स्लॉट पे जाना है, आपकी स्लॉट पे बुकिंग होगी, उस दिन हमारी ऐप पे आप लाइव स्ट्रीम करेंगे अपनी पूजा, और आपको अपना पूजा आप देखेंगे, क्योंकि यूज़र को देखना है ना मेरी पूजा कैसे हुई। तो आप अपना नाम और गोत्र सुनते हैं जो पुजारी अनाउंस करते हैं, एंड इफ़ यू हैव टेकन एनी प्रसाद दैट गेट्स शिफ्ट ओवर टू यू। गॉट इट। और ये रिकॉर्डेड पूजा भी होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड? मतलब सो द पूजा इज गेटिंग रिकॉर्डेड। हाँ, पूजा is getting recorded. You क्योंकि can हर see it आदमी लाइव स्ट्रीम नहीं देखता यार। करेक्ट क्योंकि पूजा लंबा है, 2 घंटे का प्रोसेस है। करेक्ट। तो वो कहता है कि यार 2 घंटे नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपना, मुझे थोड़ा सा चांट्स देखना है और मुझे अपना नाम और गोत्र सुनना है। तो ये सारा का सारा पूजा आपको ऐप पे दिखने को मिल सब जाता कुछ है। ऐप पे लाइव स्ट्रीम होता है, और आपके Got ऐप पे इन योर फोल्डर इन लाइक कंप्लीटली लाइक टॉप ई-कॉमर्स कंपनीज, राइट? यू गो टू माय ऑर्डर्स, you can see your Yeah, you add to your cart whatever you want, and it's very similar to that service. Got it. And then there are other products जो प्रसाद हो So, गए या so, चढ़ावा yeah. हो गया, वो भी आप मंगवा सकते हो या बुक कर सकते हो बेसिकली। तो बेसिकली मंदिर में जो ऑफलाइन कर सकते हैं आप, हम वो सब कोशिश कर रहे हैं आपको ऑनलाइन लाएं। तो आज आप वर्चुअल पूजा कर सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं यार वर्चुअल पूजा इज़ फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, इज़ फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्यूशन। बट चढ़ावा करना है कि आज मैं मंडे को ना शिव जी पे नहीं जा पाया, मुझे मंदिर जाता था, नहीं जा पाया, मैं लेट हो गया। हम एक ब्लिंकिट और जेप्टो की दुनिया में जीते हैं जहाँ पर हमें सब कुछ 10 मिनट में चाहिए, राइट? तो वो यूज़र कहता है यार अच्छा मेरे बिहाफ पे क्या आप वहाँ चढ़ा देंगे पानी या दूध, और क्या उसका लाभ मुझे मिल सकता है? तो इसका मुझे प्रूफ देना है यूज़र को, तो हम ये भी करते हैं। फिर यूज़र कहते हैं कि यार हमें ना प्रसाद चाहिए या हमें एक प्रोडक्ट चाहिए। एक चांदनी चौक दिल्ली में एक हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है, नरसिम्हा मंदिर, तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हमने मंदिर को ऑनबोर्ड करा, हमने बोला काफ़ी ऐसे यूज़र हैं जो यहाँ फिजिकली आ नहीं पा रहे, क्या इनको हम ये प्रोडक्ट्स डिलीवर करा सकते हैं? सो हम वो प्रोडक्ट्स भी डिलीवर कराते हैं। वाओ, दैट इज गुड, अमेजिंग। एंड इज योर मेजर बिजनेस फ्रॉम इंडिया और आपका ग्लोबली इंटरनेशनल क्लाइंट बेस है, कस्टमर 100% of my business in India. हम बट डू थोड़ा- यू गेट request from we get international requests, also? Devansh, and this is my, as a founder you have to balance priorities. तो मेरा टेक वाले ने बोला कि भाई अभी पहले ना इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं टेक में, इनको सॉल्व करेंगे। बट आई थिंक बाय सितंबर ऑफ दिस ईयर वी आर होपफुल ऑफ लॉन्चिंग। वी ट्राइड वंस लास्ट ईयर, इट वाज अ हाफ बेक्ड प्रोडक्ट दैट हमने लॉन्च करा, हमने सैम्पल करा, तो सैम्पल बहुत अच्छा गया, राइट? बट हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए अपने इंटरनेशनल लॉन्च को। आई थिंक ऐप लॉन्च करना बहुत ही आसान काम है, बट एक अच्छा गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए। तो हम उस गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। एक नए प्रोडक्ट के साथ हम ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट के पास जाएंगे होपफुली। Got it. But I think internationally there's a lot of scope, right? Because मैं आपको काफी एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट जुगाड़ू पीपल इन द वर्ल्ड। उनको VPN करके आराम से हमारी ऐप यूज़ करते हैं। तो हमारे को रोज़ 4-5 मेरी मेल क्वेरीज आती हैं कि वो मैं US से बैठा हूँ, मैंने पूजा बुक करी थी मेरे टाइम पे, क्योंकि टाइम तो इंडिया टाइम पे ही ले रहा है वो, और वो US टाइम पे है। तो कह रहा है मेरी पूजा, तो हम कहते हैं आपने यूज़ कैसे करा? तो कहता है मैं VPN से यूज़ करता हूँ ऐप को आपकी। पर वो लोग बुक कर रहे हैं, मतलब use काफी कर रहे लोग हैं जो हाँ, बुक कर रहे हैं। हाँ। And I think globally now जो Indians है, I think they are getting also very very spiritual. 100%. I think that's a big diaspora of people. Diaspora, yeah, It's a yeah, big huge. percentage of people. हम 100% वहाँ जा रहे हैं। आई थिंक हम कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ में हैं। लाइक आई सेड, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। वो प्लान ऑलमोस्ट तैयार है, होपफुली हम दिवाली से पहले लॉन्च करते हैं। Makes sense. How do you balance monetization versus growth in this kind of a content driven consumer business? यार सो हम वामा की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है देवांश, कि हमारे पास कभी इतने पैसे थे नहीं कि हम ग्रोथ को चेज करें विदाउट मोनेटाइजेशन। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग फ्रूगल, राइट? आपके पास पैसे हैं ही नहीं, आपके पास 6 महीने से बाहर का सोचने का टाइम ही नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा मोनेटाइजेशन। प्लस एक फंडामेंटल थॉट ये था कि अगर आप मंदिर जाते हैं आप दक्षिणा देकर ही बाहर आते हैं। वाइल कंटेंट इज़ अ ग्रेट हुक, but all businesses need monetization, right? So we have always tried to be monetization, maybe to the level that we are more monetization and less content. Now we are trying to fix, because we are at a stage कि अब हम revenue बना रहे हैं, almost break even पर आ गए हैं, कि we can experiment on this side. बट जब लिटरली तुम्हारे पास बैंक में ना अगले 2 महीने के पैसे हैं, तो तुम कुछ नहीं सोचते, तुम सिर्फ मोनेटाइजेशन सोचते। Monetization ही सोचना पड़ता है। And I think that's the way, I think ये काफ़ी फाउंडर्स मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। वो लोग कंटेंट एक्विजिशन
प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के पीछे इतना लग जाते हैं कि मोनेटाइजेशन में यू नो देयर फोकस इज लिटिल लेस एंड देन दे एंड अप बर्निंग अ लॉट. या सो यू नो जब हमने बिजनेस शुरू किया था एंड एक्चुअली मेरा कल का लिंक्डइन पोस्ट है कि मेरे को ये बहुत लोग बोलते हैं कि वामा एक स्मॉल प्रॉफिटेबल बिजनेस तो बन जाएगा, क्या ये कैटेगरी जनरेटिंग इंडस्ट्री डिसरप्टिंग स्टार्टअप बनेगा? राइट, दीज आर वर्ड्स, फैंसी वीसी वर्ड्स, राइट? एक दोनों क्यों नहीं बन सकते? ये प्रॉफिट कमाना या उस दिशा में जाना, ये गलत कब से हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है. करेक्ट. You know, I completely agree. I am a little, I'm 44, this is my second business. तो हमने तो धंधा बनाया पहले यार, और मैं 197 पे ATM काम किया. Like I don't understand the model of loss making businesses. And to tell you in a very vulnerable state, right? 2022 में जब हमने अपना प्री सीड राउंड रेस किया था, मार्केट बहुत हॉट थी, राइट? हमें सबने बोला कि यार तुम एक्विजिशन करो, ग्रो एट ऑल कॉस्ट्स, राइट? दे वर द हार्डेस्ट 6 months, क्योंकि हमने 3-4 महीने वो अटेम्प्ट करा. देवांश, आज भी उस साल के रेवेन्यू को मैं जस्टिफाई करता हूँ लॉस को, बिकॉज मे बी आई एम नॉट दैट फाउंडर. इट्स एंड हैट्स ऑफ टू पीपल हु कैन डू दिस, राइट? जो कि ये मॉडल पे काम कर सकते हैं. भाई और हमें काफी तो लोग ने किया. भाई हमें तो रात को नींद नहीं आती. मेरी कंपनी में आप क्रिएटिव डिज़ाइनर से लेके परफॉर्मेंस मार्केटर के पास उसको उस महीने का रेवेन्यू पता है, लॉस पता है. 2023 से पहले ये डेली एक्टिव यूज़र, रिपीट यूज़र परसेंटेज, ये मेट्रिक ही नहीं थे मेरी ज़िंदगी में यार. मैं देखता ही नहीं था. मैं बोलता था कितने लोग आए, हमने कितने लोगों की सर्विस करी, उसमें से कितने लोग वापस आ रहे हैं. फंडामेंटली बिजनेस तो ऐसे ही बनेगा ना यार. ये नए नए वर्ड टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आती मेरे को यार. But now VCs and मतलब once You know, you are with them, I think वो थोड़े You words. will be very surprised that if you continue on your path with conviction, you will find the right partners. And I am so fortunate that I found the right partners. That's You know, important. Yeah. who have always backed us, right? Who have said यार तुम you will figure it out. तो हमने बोला यार हमें दिख रहा है कि ये धंधा 100 रुपए पे है, फॉर एग्जाम्पल, ये 1000 में चला 1000 तक जाएगा और आप बोल रहे प्रॉफिटेबली हो- जाएगा. हाँ, और आप बोल रहे हो ये 1 लाख कैसे होगा, ये हमें नहीं पता, बट हम आपको अगले 12 महीने में ना 100 का 1000 करके दिखा देंगे. तो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये समझ में आएगा, और जिनको नहीं आएगा शायद हम उनके लिए फाउंडर ही नहीं है यार, क्योंकि हम वो बातें नहीं कर सकते यार. Correct. You can't just put in the air any number कि अच्छा ये बन जाएगा वो बन जाएगा. I think that does not make sense. प्लस कन्विक्शन भी नहीं है ना Conviction फाउंडर की. भी लाइक आई एम वेरी अनकंफर्टेबल. लाइक मैं बता रहा हूँ, वो 4 महीने जब हमने बर्न किया पैसा, मेरे को बहुत स्ट्रेस होता था भाई कि हम क्यों कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम करो. एंड द मार्केट चेंज्ड, वी आर प्लेइंग द मार्केट, राइट? द मार्केट चेंज्ड, एंड देन लिटरली उस दिन से आज तक ये धंधा मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बना रहा हूँ, राइट? जैसा हमें लगता है. हर फाउंडर की एक स्ट्रेंथ है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं यार. Correct. And I think that's very important कि VCs के बोलने से या प्रेशर पे आने के you know you should not really change your method of working, your personality, because you are something VCs tell you to become something else. That should not happen. I You know, think every founder feedback is great. feedback is great, but not every founder is made for everything, Yeah, right? Like yeah. like I know what my shortcomings are, you know. Correct. तो we'll take it in our pride, you know. But हमें पता है कि हम कैसे बनाएंगे यार, you know. And you look at it, it's very strange, right? Like today, people like us are more in demand. क्योंकि शायद वो करेक्शन मार्केट में जो आना था वो शायद आ गया, correct. you know. तो ठीक है. Got it. What are some एक वर्ड था, सॉरी आई फिनिश, Yeah, राइट? please. वन ऑफ माय इन्वेस्टर्स, देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड समीर फ्रॉम सुपर मॉर्फियस, एक कम्युनिटी चलाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीसी है. मुझे याद है, मैं तो वामा की जर्नी में भी ना बहुत लोज आए हैं. तो एक बहुत लो टाइम था, तो मैंने उसको बोला कि यार, उसने बोला मन्नू यार तू क्यों वीसी स्केल कर रहा है, तो इसको इमॉर्टल कर दे, इमॉर्टैलिटी ले आ. और मैं ना सोचता रहा, मैंने कहा इमॉर्टैलिटी क्या है? इमॉर्टैलिटी इज जस्ट जीरो बर्न, राइट? कैन यू गेट योर बिजनेस टू जीरो? फिर नहीं जाना ना वीसी के पास भाई. What is like this? We romanticize this VC investors, right? Like, angels. at the end of the day, it's capital, right? चाहे वो बैंक लोन दे दे या VC दे दे, आपको अपना बिजनेस बनाने के लिए एक X amount of capital चाहिए, right? VCs will provide you that, you know. So why can you not become self-sustaining? Every business has to become self-sustaining At one point, at correct. one point.
right? Why is that not point to? Why is that not that one point not today? Yeah, You can yeah, make it 100%, today. 100%. Got it. Got it. What are some unexpected lessons you've learned through your user behaviors? Yeah, so I over obsess on user behaviors, right? It is something that I have always done, right? कि मैं यूज़र से बहुत बात करता हूँ. We realized a few things, right? And that have changed the company, right? Like the whole virtual puja started like this. यूज़र्स एस्ट्रोलॉजर्स के पास आ रहे थे, वो बोल रहे थे, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते थे पूजा करानी है, कस्टमर बोल रहा है कि सर मैं तो जा नहीं पा रहा, कोविड है, तो आप ही करा दो ना मेरी पूजा. फिर वो बोलते थे अच्छा पूजा मैं करा दूंगा, बट एस्ट्रोलॉजर बोलता था यार अ लॉट ऑफ टाइम्स इन इंडिया आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि शनि शांति की ना पूजा करा लो, मैं ही करा देता हूँ, ठीक है. मगर शनि शांति की पूजा तो शनिदेव के मंदिर में होगी ना, मेरे घर के ड्राइंग रूम में तो शायद नहीं होनी चाहिए, है ना. ये एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में यार, जब हमने वर्चुअल पूजा लॉन्च किया. वी वर द फर्स्ट गाइज हु सेड कि वो एस्ट्रोलॉजर पूजा नहीं करा सकता यार, पूजा तो पंडित जी कराएंगे ना जो मंदिर में बैठे हैं. तो हमने ये शुरू करा, एंड दिस लिटरली केम फ्रॉम कस्टमर बिहेवियर, राइट, कस्टमर इनसाइट, कि हमने कस्टमर ने बोला कि मगर पूजा तो वहाँ से होनी है, यू नो. Then we realized that the price point of we started virtual puja, I think in the country. We started at a very high price point, 5,000, 6,000 rupees की पूजा होती थी. फिर रियलाइज़ करा, बहुत लोगों ने बोला कि बहुत अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऑफलाइन मंदिर में थे, मंदिर में रियलाइज़ करा कि एक ग्रुप में 6 लोग बैठे हैं, उन 6 लोगों की पूजा पंडित जी ने एक साथ करा दी, उस नाम और गोत्र 6 लोग के लिए. तब दिमाग चमका कि यार ये तो ये तो दिस यू कैन इजीली मेक दिस ऑनलाइन. इट्स लाइक एडटेक कि आप 100 बच्चे हैं, वो सारे लोग कोर्स में बैठे. तो हमने वो शुरू किया. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप एक साथ अगर मैं आई एम बुकिंग अ पूजा टुडे, ही इज़ बुकिंग अ पूजा, देर आर अदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम सम अदर सिटीज़, अदर टाउन्स बुकिंग अ पूजा, आप वही टाइम पे 200 जन पूजा ये कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, और सबके नाम और गोत्र अनाउंस कर दिए प्रीस्ट ने. फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम पूजा करा ली, हम आपको पूजा का वीडियो भेजते थे कि आपने पूजा, और हम फ़ोन कर रहे हैं आपने पूजा का वीडियो देखा नहीं देखा, राइट. और मैं बहुत कॉल करता हूँ कस्टमर्स को, राइट, मैं अलग अलग नाम से कस्टमर्स को बहुत कॉल करता हूँ. तो कस्टमर्स का फीडबैक आया कि वो 2 घंटे का वीडियो कैसे देखूँ मैं अपने नाम के लिए, उसको और कुछ देखना ही नहीं है. उसने हमने एक प्रोसेस बनाया देवांश की, बहुत सारे ना हमें देख के और लोगों ने ऐसा काम शुरू किया, बट वो लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में पूजा करा रहे हैं. तो हमने बोला कि यार सबसे पहले ना महंत जी से मंदिर दिखवाओ. तो सबसे पहला वामा में पूजा होगी, वो दिखाते हैं कि ये मैं इस मंदिर में बैठा हूँ, आज कैलेंडर का ये डेट है, क्योंकि आपको कैसे पता है प्रूफ, ये तो कोई पुराना रिकॉर्डिंग हो तो यूज़र को सिर्फ ये मतलब है कि ये मंदिर में हो रही है, ये इस डेट पे हो रही है, और मेरा नाम और गोत्र आ रहा है. मेरे को अपने नाम और गोत्र के लिए ना 2 घंटे मत सुनाओ. तो हमने एक स्किप टू माई नेम फीचर लॉन्च किया, और आजकल AI का ज़माना है तो बहुत ईजी है. तो हमने स्किप टू माई नेम, आप एक बटन दबाएंगे आपको अपना नाम सुनेगा. तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें सुननी थी ना, आपको जानना था मंदिर में पूजा हो रही है, आ गया वीडियो में, आपको आज डेट और टाइम चेक करना है, और आपको वो फर्स्ट 15 सेकंड्स में आ गया, फिर नाम और वो आ गया. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम द यूजर्स ओनली. हर अर्ली स्टेज स्टार्टअप का फाउंडर ही प्रोडक्ट मैनेजर है, कस्टमर सर्विस है, तो भाई मैं ही हूँ चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, CEO. Yes. You've grown to 1 million plus downloads, right? App downloads. Actually close to 2 million. 2 million now on the app downloads basically. How do you keep your users engaged on a regular, on a daily basis, and make them keep coming back to the platform? You know, I don't have the right answer to this right now. This is a problem that I obsess about right now. Like I said कि हम एक monetization वाले प्लेटफॉर्म पे बनाए थे, तो हम चाहते हैं कि वही यूज़र आए इस ऐप पे कि आप किसी पर्पस के लिए आए हैं. वो फ्री वाला कंटेंट, और हमारे देश में ना ऐसे फ्री के लिए बहुत पड़े, हाँ, तो हम नहीं चाहते. करेक्ट. we only want to talk to the 200,000 users who will come in a month and transact on my platform. But by saying that, उनके लिए भी content होना चाहिए. तो live streaming is something that we do on our app. We are launching something large on live streaming also very soon, जहाँ पर customer रोज़ आएगा, उसको रोज़ दिखेगा, आपको रोज़ अपना horoscope मिलता है, आपको रोज़ अपना live stream मिलेगा ऐप पे, right? So there are content that you will see daily on your app also, you know. But I think we have a lot of work to do. We are looking to hire people. So anyone who's listening this podcast who wants to, sorry, मेरा hiring plug हर जगह आता है. We would love to talk, right? Like this is a problem that I haven't cracked yet. Correct.
I think one thing which content will solve also is that people really get engaged. As we spoke just about कि भाई spirituality is really growing and it has grown quite a lot. तो लोग आके अगर कुछ free content सुनते हैं उनको पसंद आता है. I think then that drives them to So make like a music transaction. is one thing that Devansh, I think hopefully I should launch before 15th August, right? A lot of people want to listen to spiritual भक्ति. music, भक्ति के गाने सुनने हैं उनको रोज, right? शायद उनको कथा सुननी है. कथा सुननी है, right? वामा एक ऐसा ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया है जिसका को फाउंडर एक थर्ड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर है. ही इज़ अ PhD इन एस्ट्रोलॉजी. ही इज़ अ मैन ऑफ फेथ. वी विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ डेली टिप्स कमिंग फ्रॉम हिम. कि अगर आज मंडे है, आप क्या नाम है उनका? आचार्य देव, yes. राइट. तो डेली अगर आज मंडे है फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में शिवलिंग को आप वर्शिप करते हैं तो कैसे करना चाहिए, यू नो. हम ऐसा बहुत सारा कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं देवांश. आई थिंक लाइक आई सेड, राइट, दिस इज़ अ जर्नी. इन द नेक्स्ट 3 to 6 months you should see a lot more things. How has Acharya Dev's personality, background, influenced you as a person, as a co-founder also, and the business model also? तो बिजनेस मॉडल तो बहुत ईजी है देवांश, कि आई वॉज वेरी क्लियर ऑन डे ज़ीरो, अगर मैं ये काम करूँगा तो एक एक्सपर्ट चाहिए. एक एक्सपर्ट चाहिए और वो इम्पोर्टेंट भी है. तो ये काम इसीलिए हुआ. एंड यू नो सेरेंडिपिटी प्लेज आउट वेरी वेल इन लाइफ, राइट. हमने एस्ट्रोलॉजी से शुरू किया था. आचार्य जी के पास, आचार्य जी उस टाइम पे इंडिया में हर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एस्ट्रोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करते थे, राइट. तो ही हैड 500 एस्ट्रोलॉजर्स अवेलेबल फॉर हिम वर्किंग, एंड टेलीकॉम ऑपरेटर बिजनेस वॉज गोइंग डाउन. That's how we started Vama, right? And in the end, आज भी, right, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना देवांश, वो वहीं से रहा है. तो मेरा चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एक्चुअली वो है. उनको ये नहीं पता कि ये इंटरनेट प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बट उनको पता है ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम है यूज़र की. उसको इंटरनेट का डिजिटल प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, बट प्रोडक्ट इंस्पिरेशन तो वहीं से आ रही है, यू नो. So that's on the business, right? On the personal side, it's very interesting, right? Like, I think co-founders become family, you know, and it happens very subtly. तो अगर आपका co-founder आपकी family नहीं बन सकता, तो वो co-founder नहीं बन सकता. और आचार्य जी और मैं बहुत different social dynamics से आते हैं. हम बहुत different हैं, right? I'm a Delhi boy, typical. He comes from Lucknow. इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, हिंदी में बात करते हैं. मेरे जिस दोस्तों में मैं घूमता हूँ वहाँ पर इंग्लिश बात करना ही फैशनेबल है, यू नो. बट इट इज़ सो स्ट्रेंज दैट माई फ्रेंड्स फैमिली विल ऑब्वियसली एम्ब्रेस हिम, राइट, बिकॉज मे बी ही टॉक्स वेरी वेल, बट माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो एम्ब्रेस्ड हिम, यू नो. आई थिंक उनका तो मेरे अंदर ना बहुत सारी एनर्जी है, इज़ वॉट आई हैव बीन टोल्ड, राइट. आई कम विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. आई थिंक वो मुझे शांत करते हैं काफ़ी. एंड यू नो, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लाइक मैं एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं उनको बोल रहा था कि यार ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये फुल एक्साइटेड, राइट, लाइक आई वाज टेलिंग हिम. एंड ही सेड कि ये सब तो ठीक है भाई, इसका ना बिजनेस प्लान बना और दिखा, राइट. लाइक फॉर यू एज अ को फाउंडर, यू नो, यू थिंक द कंपनी इज योर्स, राइट. देन यू सडनली हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड से ओके वेट, आई हैव टू कन्विंस दिस गाय. एंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत है. मुझे लगता है ये सबसे अच्छी पार्टनरशिप यही है. एज अ पार्टनर यू कैन आस्क योर अदर को फाउंडर टू से भाई बिजनेस प्लान बना, ठीक लगेगा तो करेंगे, यू नो. एंड आई थिंक वामा हैज़ कम फ्रॉम 3 near death experiences. Once तो we have already died, I think. तो वापस rebirth है. But so it's very important for us. Like money is so important for us, right? Like we over obsess about it, you know. But I think the spiritual side of me was always there. I think my mother has been a Shiva devotee for a very long time. So that has played on me. And I think our family went through a really, really bad time in 1992 when I was about, I think, 12 years old, right? तो एक शिवा का अंडरलाइंग लेयर मेरे में है, वो वापस आया है. आई लाइक गोइंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस. मे बी इट वॉज देयर, एंड शायद हर आदमी की लाइफ में जब वो एक व्हेन यूर इन अ रियली लो पॉइंट ऑफ योर करियर, तो आप भगवान से भी लड़ते हो ना. तो आप बोलते हो मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मैं नहीं करूँगा, यू नो, आई डोंट नीड टू गो थ्रू दिस, राइट.
and then it reconnects, right? That why So it happened. Why it happened, and then you start to understand, right? This is all Join part the of, dots. it's a journey, right? Like, so I think I have come back. He is also my spiritual counselor. That he counsels me a lot, right, on things that I should be doing, I should not be doing at a personal level. Very, and I'm not that guy, right? I'm a alpha person, right? Like, but I listen to him, and a lot of times, like, we go out. हम सिर्फ एक मंदिर में बैठे हैं आंगन में, और हम आपस में बात नहीं कर रहे, वहाँ बैठे हैं बस 1-2 घंटे, right? And then we generally talk. So this side of me has come back. The more mature side or more understanding वाला side, एक सोच समझ के करने के लिए, that I think it's a lot of it is still lacking. But to even hear someone else out, right? For example, अब वो कल ऑफिस आ रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, right? तो कल एक बड़े संत के साथ आ रहे हैं, तो काफ़ी बारी ऐसा होता है कि वो मेरे को उस कमरे में बैठा देते हैं जहाँ पर एक तीसरा आदमी बैठा है जो कि स्पिरिचुअली आपसे बहुत हायर है, you know, and you're listening to that third person, क्योंकि शायद आप और आपके को फाउंडर इक्वल हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली आपसे बहुत आगे है, राइट? बट जब थर्ड आदमी भी आपको बोल रहा है ना, आपके सबकॉन्शियसली वो प्ले आउट हो रहा है, इट्स चेंजिंग समथिंग इन यू. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, you know. Hi everyone, a quick shout out to our amazing sponsors and partners who make this show Level Up possible. First off, No Filter Juice, which is your daily dose of pure, unfiltered goodness with 100% real fruit juice, zero added sugar, no preservatives, and no artificial concentrates. Every sip is packed with authentic flavor and nutrients. Plus, it's served in eco-friendly glass bottles. Good for you and good for the planet, starting at just rupees 159. No Filter is the healthiest way to fuel your day. Click on this link below to purchase your bottle now. Our second sponsor is Titus Footwear. It is a brand built on legacy, quality, and innovation. From sturdy work boots to stylish sandals and cozy slippers, Titus has something for everyone in the family. Especially if you are a child going to school, this is a brand known for its footwear for school children. Affordable, durable, and always in style, Titus lets you walk with confidence starting at just rupees 299. Click on the link below to purchase your shoes now. I would like to thank our growth partner Growth OS and our venue partner Let's Work. I think that's very, and in a sense that you are lucky that you are, spiritual from your mother's side, etc. As you said, you have Shiva ka internally, and आपको ये business भी as your core job करने को मिल रहा है, which is into spirituality, and you've got a partner also who is, so I think all the dots have been connected for you at the moment and how it has been shaped up. So interesting. What were the biggest challenges you faced in convincing a VC or an investor at your early stage? अभी तो खैर ठीक है, now you've scaled up and now wouldn't be that big of a problem जो एक पहले राउंड में शायद हुआ होगा. तो पहला राउंड बहुत ईजी था, बहुत ईजी था. द फर्स्ट मनी आई रेज्ड वाज वेरी ईजी. It was a small 1 crore round, right? Extremely easy to raise, right? Like literally, मैं उस टाइम पर एक और बिजनेस चलाता था, एंड मैं उसको ख़त्म करके, तो आई ऑन पेपर आई वॉज अ ग्रेट ऑपरेटर वर्ड आजकल की. मैं 197 पेटीएम में 5 साल काम किया है, मैंने एयरसेल में काम किया है. प्रोफाइल अच्छा था. मैंने एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी को 20-25 करोड़ रुपए साल के रेवेन्यू पे ले आया था, प्रॉफिटेबल, वेरी गुड मैन. एंड देन यू हैव अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट विच इज़ आचार्य देव, राइट? सो वो जो पीपीटी है ना जिसमें मुझे पैसे मिले, वो सिर्फ एक इन्वेस्टर ने देखी थी. मेरी जो पहली एक 0.1 कैपिटल है, अर्चना थी, मिहिर और रवीश. मैं उस पीपीटी को अपने आप को पैसे नहीं दूंगा. मैं उनको आज हम हंसते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ये याद नहीं है. अभी मेरी कल परसों ही बात हो रही थी मिहिर से, तो उसने बोला तुझे याद नहीं है, हमने तेरे को दूसरे स्लाइड पे रोक दिया था और तू बात कर रहा था. सो फॉर अस इट वॉज नॉट द पीपीटी, इट वॉज यू. It was Acharya Dev and Himanshu also, my co-founder at that point of time, right? Like they said, we bet on the team, So that was very easy, Devansh. उसके बाद तेल निकला यार. I have said this before also. I think that
रेजिंग कैपिटल हैज़ बिन वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स. और पता है क्यों है देवांश? इंडिया वीसी इकोसिस्टम एक प्रोफाइल पे खेलता है. क्या है वो प्रोफाइल? IIT, IIM, पेडिग्री, आपका background, आपका सेकेंड टाइम जनरेशन, सेकेंड टाइम फाउंडर, थर्ड टाइम फाउंडर, राइट? द odds ऑफ यू रेजिंग कैपिटल वर्सेस देम आर हायर, राइट? एंड द एज, यहाँ पर 3 लड़के हैं, एवरेज एज 43 है, उनमें से एक अंग्रेजी नहीं बोलता. तो तुम्हारा circle में बैठेगा ही तुम्हारा नहीं. एक वीसी इकोसिस्टम, वो आदमी तो कह रहा है वहाँ पे यार वाइब ही नहीं आ रही है हमें. हम कह रहे हैं भाई वाइब लेने थोड़ी आए हैं तुमसे, मतलब काम करने आए हैं ना. एंड इफ यू आर अंडरमाइनिंग द एक्सपर्ट, यू आर क्वेश्चनिंग हिज एबिलिटी, राइट? देन देयर समथिंग रॉन्ग. यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. And his domain knowledge on this problem is maybe he way doesn't talk superior. in fancy DAU MAU, नहीं आता यार हमें यार, ठीक है तो, but काम तो आता है. So that time was very hard. I think the first time I tried to raise my pre-seed round was very hard. I went through a lot of rejections. And you know, if you're at 40, you have made, you've led a good corporate life. राइट, लाइक कॉर्पोरेट लाइफ अच्छे, तुम क्वेश्चन कर रहे हो, एक स्टेबल जिंदगी छोड़ के यू आर स्टेबल. एंड एक क्वेश्चन भी आता था ये कि यार तुम तो एक और नौकरी कर लोगे वापस छोड़ के, ये सब क्यों करोगे तुम, लाइक द बेनिफिट ऑफ द 24-year-old. बट आई थिंक वी कम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक द लर्निंग्स ऑन दैट प्रोसेस एंड जर्नी हैव स्टेड विद मी, राइट? और मैं सेल्स का आदमी हूँ यार. देख, मेरी ज़िंदगी ना शुरू होती है 2001-2002 से. मैं कॉल सेंटर्स में नौकरी करता था, मैं सेल्स करता था. तो टेली सेल्स का रूल क्या है देवांश? आप दिन की 100 कॉल करते हो और आपकी 2 ही सेल होती. तो मैं तो वापस बेसिक्स पे चला गया. मैंने कहा 100 VC से मिलूंगा, 2 ही तो पैसे देंगे, तो ठीक है. वो रेट पकड़ के ही चलना है. बट वो बहुत हार्ड है. जब उस प्रोसेस में आप हो ना देवांश, आप सब कुछ क्वेश्चन करते हो, आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो, सब कुछ क्वेश्चन करते हो आप. इट इज़ द लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स दैट आई हैव हैड इन वामा, बिकॉज यू नो देन यू आर थिंकिंग यार क्यों कर रहा हूँ मैं. मेरे सामने ये जो बैठे हैं लोग, इन्होंने लाइफ में करा क्या है? 26 साल के ये लोग हैं, एसोसिएट एनालिस्ट, ये मुझे क्यों जज कर रहे हैं? यू नो, ये मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फिटिंग इन अ प्रोफाइल ऑफ पीपल दैट यू आर यूज टू गिविंग मनी फॉर, राइट? सो इसका ना एक ही आंसर है, आपका बिजनेस आपको, अब टुडे वी आर एट वामा, राइट? माई बिजनेस स्पीक्स. अब मेरे को सामने किसी भी खड़ा कर दो, अब मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ. एंड आई डोंट ब्लेम दोज इन्वेस्टर्स, राइट? मे बी बिकॉज people who come from these pedigreed education, they have had to compete more, fight more, right? But today I'm at a place where my revenue is, मेरा आज कोई नहीं पूछेगा ना मेरा और मेरे कंपेटिटर का बैकग्राउंड क्या है. आज तो वो पूछते हैं भाई रेवेन्यू किसका कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? अब बिजनेस पे बात होगी. But now, luckily, and I think with all your relations, as we were speaking before the shoot, you've got some most prominent investors going around in the country, and someone who have built large companies, you know. So kudos on that. What frameworks or principles do you use to validate whether a business idea can scale to $100 million? यार ये सब, I don't believe in all this. I feel the business should make business sense. Not every business is supposed to make $100 million. $100 million बहुत होता है यार. 800 करोड़ साल का बिजनेस करना, हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां होंगी यार जो कर रही हैं? वैल्यूएशन छोड़ो. हाँ, revenue 800 is the करोड़ main. 800 North Star करोड़ तो revenue. साल का कितनी कंपनियां करती होंगी इंडिया में, जो कि न्यू एज कंपनियां हैं. यू नो, आई एम नो वन टू जज. 800 करोड़ बनेगा एक्सेल में, तो तू मेरे को कुछ भी बनवा ले, मैं बना दूंगा यार. यू नो, हर अच्छा सेल्स का लड़का एक्सेल में कुछ भी बना देगा और वो कन्विंसिंगली आपको प्रूव कर देगा. यू नो, इट वर्क्स और नॉट. फॉर मी इट इज़ how much money will I lose if I have to get to a certain level? Is this business inherently profitable? हर बिजनेस का ना एक नेचर है यार कि X फिक्स कॉस्ट है, Y वेरिएबल कॉस्ट है. एक स्केल पे आके वो टोटल रेवेन्यू शुड बी ओवर एंड अबव बोथ ऑफ देम, राइट? वो स्केल 10,000 करोड़ तो नहीं हो सकता ना भाई, 800 करोड़ भी नहीं हो सकता. तो किस स्केल पे आके बिजनेस अपने आप को सेल्फ सस्टेन करते हैं? You know, I come from that background. Correct. And that is important. You have to be realistic. You can't just तो say मेरे लिए 800 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है. मैं तो सिंपल देखता हूँ, क्या ये बिजनेस महीने का 4 से 5 करोड़ प्रॉफिट निकाल सकता है?
if a business vertical in Vama can build 5 crore a month net profit, I will do that business. That's a lot. That makes it a long-term sustainable business. We can be, Vama can be a mixture of 100 such small businesses that we will do. Got it. For founders who are looking to build a consumer tech first business, something like yours, what is one piece of advice you'd give? Hire the CTO before you hire your investor. Like the first thing, man, like 2020 से लेके 2023 तक मैं CTO के लिए struggle करता रहा है. We started with an agency, we got a tech guy, we got a different tech guy. Boss, I have had, Divik Kishore is my CTO. He was InstaAstro co-founder, he was Times Internet number 3 guy, tech. मैंने इन्वेस्टर को अपने आप को इतना नहीं बेचा जितना मैंने दिविक को बेचा है अपने आप को कि भाई मचाएंगे हम, तू आजा, बस तेरी कमी. If you are building a consumer tech platform in India, in my mind, I'm a धंधा guy and I understand basics of product, right? But tech तो एक काला बक्सा है यार. कल को वो बोलेगा ये 10 दिन में बनेगा या ये 30 दिन में बनेगा. You can't debate it. Now using AI, maybe you can, right? Make some assumptions. But you need to find the tech partner in you who is as mad as you, यार. Foundership तो एक word है मेरा, entrepreneurship का, जुनूनियत है. ये जुनून ही है ना. जुनूनी है, हाँ, राइट. क्या CTO जुनूनी मिल जाएगा? क्योंकि वो तो बिल्कुल डे ज़ीरो पे जुनून आ रहा है, राइट. तो फॉर मी टू गेट द CTO एट द राइट टाइम हैज़ बिन वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन. इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड हैव हायर्ड दिविक सबसे पहले. आज मैं 24 महीने लेट इसीलिए हूँ क्योंकि दिविक 24 महीने लेट आया मेरे पास यार. बिकॉज कंज्यूमर टेक में अगर टेक ही नहीं चल रहा है, राइट, आवर टेक वॉज सो बैड देवांश. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, हम रोते थे टेक में बैठ के. फिर मैंने लिटरली, जब हमने आइडेंटिफाई करा यार ये एक आदमी है और ऐसा नहीं है कि उसके पास और ऑफर्स नहीं थे, तो आई मेट हिम 6 times. और मेरा ऑफिस अच्छा नहीं था, मैं उसको ऑफिस नहीं बताता था. मैं बोलता था यार आप नोएडा से हो, आप गुड़गांव थोड़ी आओगे, आपको मैं बीच में मिल लेता हूँ. तो मैं बीच में मिलता था उससे, कॉफ़ी शॉप में मिलता था, क्योंकि मुझे डर था कि यार उसको ऑफिस अच्छा ना लगे फिर. तो मैं तो ऑल इन हो चुका था. और आप कन्विंस थे कि यू वांटेड. आई वॉज कन्विंस्ड प्योरली बिकॉज उसका काम हमें पता था एंड हिज इंटेग्रिटी मैटर्ड. CTO is also like a relationship, right, that you'll have, right? He is, for me, in all practical purposes, a co-founder of Vama, So, उसका और मेरा जमना चाहिए यार. प्लस उसका और मेरा अगर लड़ाई भी होती है, देख बहुत लड़ाई होगी बिजनेस और टेक की, अगर लड़ाई नहीं हो रही तो काम नहीं हो रहा भाई. ठीक. तो does he have the maturity to take it in him, right, and then come back and not let it affect his work or his team, right? So दिविक इस मामले में बहुत हमारी जमती है यार. Super. So if you're I think building that's a consumer very, tech, very right, like interesting. you can't build it without the tech. ये आउटसोर्सिंग एजेंसी भाई, हाथ जोड़ के मैं हर फाउंडर से विनती है मत करना, क्योंकि हम तो जल के आए. Correct. Okay, we'll move to our last segment, which is the rapid fire round, right? First question: what was your lowest point as a founder, and how did you overcome it? So out of money in bank, I'll not talk about it when. I didn't have money to pay salaries. Right. This was when? ये when मत पूछो. Okay. But didn't have money to pay salaries. My existing investor, Wavemaker, wanted to give us money. The Indian laws don't allow you to take a loan from a foreign entity in a startup, right? So then they said, okay, we will do. They didn't want to do a bridge round क्योंकि हमारा बड़ा राउंड होने की बात चल रही थी. तो उन्होंने बोला वो राउंड हम करते हैं, right? The lowest point became my highest point because they said at one point they were also not convinced. कि उनको लगा था ठीक है यार नहीं चल रहा, मेहनत करिए, नहीं चला. It came back to them saying we will back you till the end. So they have decided to lead the round. I think that was one of the very hard moments, right? पर वही moment आपके लिए बड़ा moment भी बन गया. Nice. What's the most unspiritual habit you have as a founder? Unspiritual is not a word, but non-spiritual. यार मुझे तो लगता है हर चीज़ स्पिरिचुअल है.
क्या चीज़ नॉन स्पिरिचुअल है? जो आप एज अ फाउंडर करते होंगे कंपनी में या ऐसा? चिल्लाता हूँ यार बहुत शायद। हाँ थोड़ी फाउंडर एनर्जी निकलती है। अल्फा एनर्जी निकल अल्फा चिल्लाने की एनर्जी बहुत निकलती है यार। तो शायद जब आचार्य देव ना हो ऑफिस में तभी आ नहीं नहीं, जाए। आचार्य देव होते हैं तो आचार्य देव और मेरी लड़ाई बहुत होती Okay. है। वी स्पार अ लॉट। Okay. We are sparring partners, so we spar a lot. But I think that's one habit that I'm trying to control on also. And I Okay. have 2 young kids also, so तो वो sometimes भी it थोड़ा- carries home also, right? हाँ करेक्ट. What's your who's your favorite business icon? थोड़ा क्लीशेड आंसर है यार, बट माई मदर. यू नो मेरा एक बैकग्राउंड है देवांश. आई एम बॉर्न इन अ ग्रेट साउथ दिल्ली फैमिली. यू नो द ईयर 1992 everything gets taken away from us, right? My father goes in severe depression, losses, business band ho gaya. My mother, who's barely a graduate from a very small town in Punjab, has to do odd jobs. She has to take up entrepreneurship to make sure that there is food on the table. तो हमारी ज़िंदगी वो है जब एक साल आपके बर्थडे पे पूरा मोहल्ला आया, अगले साल आपके पास केक काटने के पैसे नहीं हैं, राइट? सो आई कम फ्रॉम देयर, राइट? लाइक सो इफ शी वुडंट हैव स्टेप्ड अप, आवर लाइफ वुड हैव बिकम वेरी डिफरेंट. So hats off to her. Very interesting. Great. What are the top 3 acquisition channel giving highest ROI for a consumer company? Yeah, for us, performance marketing and social media has worked extremely well, right? Again, because we are in the business of CAC over LTV, so performance marketing works very well. क्योंकि spirituality content बहुत engaging है, तो अगर आपका Instagram एक अच्छा hook बन जाए, तो that can become a great acquisition channel, right? So that has been very good for us, right? These 2 channels have worked. Third podcast, we hope we'll get some users from here. अभी आप आने वाले हो. Great. Thank you. Thanks a lot, मनु भाई. I think very interesting conversation. काफ़ी कुछ सीखने को मिला. और आपकी जो हम्बल स्टोरी है और हम्बल बैकग्राउंड से जो आप बिलोंग करते करते यू रीच टू दिस लेवल, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी हम्बलिंग फॉर मी. And as I said at the start of the podcast, I think your energy when you entered the room is, lighted up everyone. We had very good conversation. नहीं, sir. Thank you. Thanks a lot, Manu Thank bhai. you so much for having me. Yeah, thank you. Thank you.